Okay. Right, sir. I'll just quickly share the files with you ताकि we can start the standard. ठीक है. So let's quickly look at the background. Okay, what is the background of all these standards? Like I had just said to you, uh, these standards are basically uh, the quality management standards. ठीक है. Or what is the background of it? Introduction to it. We're going to look into it detail wise. ठीक है. Uh, can you see my screen? Yes, sir, I can see it. Okay, very good. Okay. First of all, the very famous international standard organization ISO 9001. ठीक है. This is a common standard, which is you can say, uh, the governing standard. ठीक है. So if we talk about it in detail of it, let's. Okay, the history of it is basically, if we talk about ISO 9000, what are the main goals of this effort? Uh, इसको थोड़ा सा पीछे जाए तो 1980s में देयर इज गोइंग टू बी द डिटेल कमिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, there were many organizations in the world that were on the standards. ठीक है, तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए और दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो काम हम कर रहे हैं या जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट हो रही है दुनिया में प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज के लिए, सो दे एक्सपेक्टेड कि जो स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं, तो सेम फिलोसफी या सेम यू कैन से methodology should be adopted by people who are working with us as the stakeholders. Normally मतलब सप्लायर्स के पास भी वही स्टैंडर्ड का काम या वही मैनेजमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो हमारे पास अडॉप्ट होते हैं. ठीक है. सो फॉर दैट पर्पज दे वांटेड टू अलाइन ईच अदर. तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कोशिश की गई कि लेट्स मेक अ स्टैंडर्ड, ताकि एक तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर एक स्टैंडर्ड पे आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा. और सेकंड वाज बेसिकली जो सप्लायर्स हैं ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो वो अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू डिफ्रेंशिएट कि किस सप्लायर से हमें ऑर्डर लेना है या नहीं लेना. ठीक है. सो this was the International Organization for Standardization. It started working on these guidelines in late 1980s to facilitate international trade by providing a single internationally accepted set of standards for everybody's reference. ठीक है. So this was the you can say the understanding, or you can say the main goal of this effort that started in 1980s. Okay, as you can see, we just discussed it. ISO based the foundation of ISO 9001 in the content of British set of standards. अच्छा, इससे पहले quality standards थे, they were called British standards. Okay, BS 5750 सबसे पुराना document है, and it's also the military applications document, you can say, for the military purpose or the military use vehicles and equipments and the weapons that were built in the, British. So they were using the military application standard BS 5750. ठीक है. BS 5750 aimed at tightly controlling the quality of munitions assembly in factories that built bombs in UK during World War II. With the encouragement of British government, ISO drafted the first version of these standards in 1987. Right. So as I've just discussed, so this is the whereabout about the history of making the ISO standard. 1987 was the first version of it. Or significant reason for the rise in registration in UK was due to the increasing demand by governmental type organizations and civil project contractors that their suppliers were ISO 9000 registered. As I've discussed, this is again the same thing we have discussed. Any problem in this? सर, आवाज आ रही है मेरी? वाज इट मी और सबका इंटरनेट बंद हो गया था? एक्सपीरियंस आउटेज. I can hear your voice very clearly. आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. आई फील वेरी स्लो. दैट्स व्हाई आई नॉट ओपन माय वीडियो कि आराम से आपको आवाज़ सही आ जाए. सो सर डिड मैं यू गॉट द मैं बीच में लास्ट? गायब हो गया था, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था. हाँ, ये स्लो चल रहा है. मुझे भी काफ़ी घंटे से प्रॉब्लम आ रहा है. दैट्स व्हाई वी हैड अ डिले इन द क्लास. लेकिन सर चले अभी द वर्ड्स दैट आई हैव जस्ट गिवन और द टॉक्ड अबाउट अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम जो सामने नजर आ रहा है? आर यू क्लियर अबाउट दिस, राय सर साहब? मैं तो वो पहली पहली स्लाइड के बाद तो मैं ऑफ हो गया था ना, मैं अभी ज्वाइन कर पाया हूँ. ओके, आप दूसरी स्लाइड पे आ गए. व्हाट जी, मोटिवेटेड दूसरी दिस स्लाइड मेरे इनिशिएटिव? सामने.
आपके सामने स्लाइड आ गई है? ये आपसे रिलेटेड भी है, अच्छा जी आपका सर, आ इंटरेस्ट गई है। इसमें? हाँ, आ गई है मेरे सामने। ओके, ये बेसिकली इफ यू कैन प्लीज रीड दिस फर्स्ट पैरा, तो आपको मज़ा भी आएगा हाँ, पढ़ने में। ये बेसिकली ISO पढ़ूँ उसको? आप पढ़ ले, मुझे मज़ा आएगा, आप पढ़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा कि ये आपसे रिलेटेड है, कि कैसे आईएसओ स्टार्ट हुआ। ओके 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 ओके। So, okay, what motivated this initiative? ISO based the foundation of ISO 9001 in the content of a British set of standards, यस, BS 5750, an older document for military application. Okay. यस, So this BS 5750 aimed at tightly controlling the quality of munitions assembly in factories that built bombs in United Kingdom during World War II. Okay. With the encouragement of British government, ISO drafted the first version of these standards in 1987. A significant reason for the rise in registration in the UK was due to increasing demands by governmental type organization and civil project contractors that their suppliers were ISO 9000 registered. ठीक है सर, Okay. क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली आपके लिए सर भी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यस क्योंकि बॉम्ब्स का जो है ना वो यूजली उसका इस्तेमाल में तो इतना वो क्वालिटी तो थोड़ी वो मैटर करती है, लेकिन इसकी स्टोरेज के लिए भी ना बड़ी बहुत बड़ा इशू होता है इसकी स्टोरेज का। सर, आप तो स्टोरेज पे पहुंच गए, तो हम तो कह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन पे सबसे बड़ा स्टोरेज होता है। इन्वेंट्री एंड ऑल दीज हाँ पाउडर्स, रॉ हाँ हाँ मटेरियल से हाँ, लेके बिल्कुल। प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज। सो दिस वाज जस्ट नॉट हाँ। वन ऑफ द यू कैन से टाइप्स। फिर इसके अंदर भी बहुत सारी हम्म चीज़ें थी, तो दिस वाज ऑब्वियसली गोइंग टू बी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। सो इससे पहले हम्म ब्रिटिश स्टैंडर्ड हम्म, फॉलो होता था, तो उसमें दे वर मेकिंग श्योर कि दीज स्टैंडर्ड्स वर रिटन। बट इंटरनेशनली जब इन्होंने देखा कि ये स्टार्टेड उनकी यू कैन से कि वॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ, लेकिन इट वाज लेटर अडॉप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज, एंड स्पेशली हाँ। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसने बहुत वेलकम हम्म किया आईएसओ स्टैंडर्ड्स को और उसकी हम्म प्रैक्टिसेस को। और आप हैरान हो जाओगे कि आईएसओ स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और आज आहिस्ते आहिस्ते हम्म, इट डेवलप इनटू सर्विसेज आल्सो। तो आज ये आईएसओ जिस हाल में है, हाँ। 2000 आईएसओ 9000 2015 के नाम से मशहूर है। और ये बेसिकली हम्म, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इट इज आल्सो कवरिंग द सर्विसेज सेक्टर। सही ठीक है। सही सही। ये तो बड़ा जो है ना, आई थिंक वॉर्स ऑलवेज प्रोड्यूस सम वंडरफुल टेक्नोलॉजीज और स्टफ अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मैं आपको अपार्ट फ्रॉम और ऑल द बताऊं किलिंग्स कि एंड द वॉर, स्टफ। जितने हमारे स्टैंडर्ड्स और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है ना, तो इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है हाँ। वॉर के साथ। तो आपको एक और मैं बताऊं कि वॉर इज अ प्रोजेक्ट, ये बड़ी डेफिनेशन में आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका आपको बस, मतलब है कि एट द प्रेजेंट टाइम लॉट ऑफ कंट्रीज हैव स्टैग्नेटेड, सो आई थिंक वी नीड अनदर वॉर ताकि एक प्रोजेक्ट शुरू हो और फिर उसके बाद में वी हैव अ कामयाब लॉट हो ऑफ जाए। वॉर्स गोइंग ऑन, लाइक यूक्रेन भी चल रहा है, देखो दुनिया में, आप देखिए दुनिया में तो हाँ बहुत कुछ हो रहा है। आप हाँ। वॉर इसीलिए ताकि दे हैव लॉस्ट सो मच प्रोडक्शन, ऑल दैट। चले, लेट्स मूव ऑन। हम्म। अदील, आर यू इन द डिस्कशन? आप हैं इधर, हमारे साथ ही हैं? जी सर, आ रही है आवाज। वेरी गुड, बस आपकी आवाज़ हमें आनी चाहिए ताकि हमारे ये महसूस हो कि आप हमारे साथ ही हैं। ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम विद दिस अदील? मज़ा आ रहा है ये स्टैंडर्ड्स पढ़ते हुए? जी सर जी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, लेट्स मूव दिस। ओके, हु इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस एफर्ट? तो 163 countries were behind the efforts that led to the creation of ISO. Each of these countries had elected a representative member to the International Organization for Standardization. इसका पूरा मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट्स कॉल्ड आईएसओ। ओके, इट्स मेन सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, एंड आईएसओ रिमेन्स द मोस्ट नोन डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। अब तो 163 का तो बहुत ज़्यादा फिगर बन गया, 170s में आ गया, 177 कंट्रीज हैं लेटेस्ट में, तो 163 कंट्री वाज बिहाइंड दिस क्रिएशन ऑफ आईएसओ, राइट? सही। हम भी गरीब लोग हैं, या हम नहीं, हमारा कोई है प्रॉब्लम? हमारा भी, मैं आपको आगे चलते जाए बताते जाते हम कहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि इसमें डेवलप अच्छा कंट्रीज को उन्होंने डाला है ना। अच्छा। चल देखते हैं आगे हम कहाँ हैं, इसमें देखते हैं अ- इसमें आके हम कहीं सही कहीं हैं। सही। ओके,
When was this of effort initiated? As opposed to ISO 9000, which was introduced in 1987, ISO 9001 आ गया, इसके बाद 2 आया, फिर 3 आया, were all combined in year 2000, और इसको ISO 9001 2000 कहते थे, ठीक है। Okay. 1987 के बाद ये तीनों स्टैंडर्ड जो 1 2 3, इसके बाद एक कंबाइंड स्टैंडर्ड आ गया, जिसको 2000 में कंबाइन कर दिया था। अच्छा, 9000 वाज अपडेटेड इन 2008। देखिए, जो ये डेट होती है, दिस इज द अपडेटेड डेट। ये जो डेट होती है, इस पर अपडेशन होती है कि 2000 में अपडेट हुआ, तो यही स्टैंडर्ड 2008 में Okay. अपडेट हुआ। और this is like the Mm. 9001 updated in 2008. The changes are considered minor. Companies that seek ISO 9001 2008 certification will be evaluated by process of examining a sample of their products, processes and functions to see if they are compliant. अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 9008 के अंदर इन्होंने ये किया था कि सैम्पलिंग को लेके आ गए थे, कि पूरे Mm. स्टैंडर्ड को, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्लाई करना और ऑडिट करना, इट वाज नॉट पॉसिबल। सो दे अडॉप्टेड द Mm. प्रोसीजर के 2000 9001 2008 में इन्होंने कहा कि सैम्पलिंग मेथड विल बी यूज। मतलब अगर आपकी कंपनी में या वट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग इन, वहाँ पे अगर ऑडिट Mm. होगा तो दे विल ऑडिट बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक। मैन्युफैक्चरिंग का ठीक। कोई अगर 5 उन्होंने उठा लिए कोई सैंपल्स, और उसमें से प्रोडक्ट उनको इवैल्यूएट करा कि इसको जी। किस सप्लायर ने दिया, उस सप्लायर की इवैल्यूएशन आपने की या नहीं की, सप्लायर की केपीआईज क्या थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या थे, फिर सप्लायर की रिस्क मैनेजमेंट क्या था, रिस्क आपने कवर किया था नहीं किया था, रिस्क इवैल्यूएशन हुआ था, और इसके बाद वर द रिजेक्शंस फ्रॉम सप्लायर, रिप्लेसमेंट हुई, तो अगर रिजेक्शन हुई तो सप्लायर को आपने ब्लैक लिस्ट किया, तो दे विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ ऑल द सप्लायर्स। डेफिनेटली सैंपल उठाएंगे किसी चीज़ का, हम्म। उसमें जाके फिर दे विल यूज़ द मेथड, ठीक है। हम्म। ये 2008 में उन्होंने सही। स्टार्ट कर दिया कि सैम्पलिंग वाला पार्ट हम डाल देते हैं इसमें, और इस मेथड के तहत आज भी जितनी हम्म। होती है सारी ऑडिट, ये सैम्पलिंग मेथड में ही होती है, ठीक है। अब आपकी किस्मत है। तो सही। इसमें मैं इस पे बड़ा मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और रिजर्वेशंस भी हैं हम्म। कि इफ़ यू मर्फी लॉ होता है कि सैंपल उसके हाथ में, वैसे ईमानदारी से भी करवाएं, और उसके हाथ में हम्म। कोई चीज़ आ जाए तो दैट वुड बी लाइक, अगर आपका बैड लक है तो ही विल जज द हम्म। होल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द सैंपल, ठीक है। आपका पूरा सही। सही है लेकिन सैंपल उसके हाथ में गलत आ गया, आप यू कैन नॉट जस्टिफाइड। और आपके पास हज़ारों खामियां हैं लेकिन सैंपल उसके हाथ में सही आ गया, तो यूल गेट द, हम्म। यू कैन से कंप्लाइंस सर्टिफिकेट कि आपने सारी चीज़ों को कंप्लाई किया हुआ है। ये कहने की बात है, हम्म। इसमें बहुत सी चीज़ें प्रोसेस में भी समझ आ जाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर अब सही। ये जोर पड़ गया, 70-30 में हो गया। 70% दे लुक एट द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हम्म। अदील, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है? कैन यू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट? तो रिकॉर्ड तो वो है, एक चीज एविडेंटली प्रूफ हो जाएगी तो उसको हम एज फैक्ट के तौर पर हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे, वो हमारा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम प्रोसेस जो बना रहे हैं उसमें जो स्टेप्स डिफाइन कर रहे हैं वो उसका डॉक्यूमेंट होगा, अच्छा, चलो क्योंकि मैं वो बता, रिकॉर्ड कीप करने। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आई शुड एम्फसाइज। और रिकॉर्ड देखो, डॉक्यूमेंट वो चीज़ होती है विच इज़ लाइक आपने लिख दिया इसमें कि भाई ये हमारी, दिस इज़ द प्रोसेस, और इसकी डायग्राम्स बना ली, फ्लो चार्ट्स बना लिए, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर लग गई किसी की, और वो रिकॉर्ड, दैट इज़ गोइंग टू बी ए रिकॉर्ड फॉर यू, ठीक है। अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया विद द सिग्नेचर और आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया, ठीक है, सो दैट इज़ नो मोर अ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ रिकॉर्ड फॉर यू। और रिकॉर्ड को फिर आपने रिटेन करना होता है, ठीक है। 5 साल के लिए करेंगे, 3 साल के लिए। तो दिस इज हाउ दे डू द ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो ऑडिट हमेशा रिकॉर्ड का भी होता है, डॉक्यूमेंट्स का भी होता है। रिकॉर्ड्स वो होंगे जो सही। आपके सिग्नेचर से आपने एसओपीज या ये चीज़ें बनाई, सब रिकॉर्ड है। और डॉक्यूमेंट्स वो है जो आपके टीओज हो गए, या कोई आपकी जनरल ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आ गई जो ओईएम ने दी है, ठीक है। सो वो आपका रिकॉर्ड कीपिंग या आपका लॉग बुक्स हो गई, दीज ऑल रिकॉर्ड्स। तो आईएसओ जो है ना वो, जो ये हमारे डब्ल्यू होती है, पैकेजेस होते हैं, ये रिकॉर्ड है। कौन से? ये हमारे वर्क पैकेजेस होते हैं, जो उससे हम वर्क पैकेजेस ड्राइव करते हैं, वर्क पैकेजेस बनाते हैं। देखो, वर्क पैकेजेस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं तो डेफिनेशन आईएसओ की बता रहा हूँ। आईएसओ कहते हैं कि भाई वो चीज़ रिकॉर्ड है जिसमें आपने साइन कर दिया ना, दैट इज़ रिकॉर्ड फॉर यू, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट, अब वो जब तक साइन नहीं, वो डॉक्यूमेंट है।
लेकिन जब वो साइन हो गया, अब वो रिकॉर्ड बन गया है, अब उसको आप रिटेन इन्फॉर्मेशन में डालेंगे। 5 साल के लिए रिटेन करें, 10 साल के लिए करें, जैसी जो उसकी पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे। आप जो बात करें वर्क पैकेजेस, दैट्स अगेन एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, वो यहाँ पे हम कहीं जिक्र नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द SOPs दैट आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम ऑडिट करते हैं। ये मैंने जिक्र किया कि ऑडिट में ISO में हम दो चीज़ कंप्लाई कर रहे हैं। एक तो सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं 2015 के बाद, कि कोई एक चीज़ का सैंपल उठा लें। अब SOP में मैं जाऊँगा तो आई विल नॉट पुट द SOP इन सैम्पल, SOPs तो मैं सारी चेक करूँगा, ठीक है। उसके अंदर के बाद जब मैं जाऊँगा प्रोडक्शन साइट पे, तो प्रोडक्शन में कोई 5 आइटम उठा लूँगा या 3 उठा लूँगा, उसको देख के सैंपल बेस पे इवेलुएट करूँगा। दिस इज हाउ द मेथड गोज ऑन, ठीक है। इसमें क्लैरिटी का। अदिल, आपकी आवाज़ क्यों इतनी हुआ है, मुझे थोड़ी सी। लेकिन आवाज इस साथ वॉकी टॉकी भी इसका चल रहा है बैकग्राउंड में। नहीं सर, वॉकी टॉकी नहीं चल रहा। सिग्नल्स का नहीं, सर इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा हाँ मुझे पता है कि अच्छा। आई फील इट बहुत स्लो है। इसमें ना इको आ रही है। इसमें एक ऑप्शन है, इसकी ऑडियो में जाओ ना तो इको कैंसिलेशन वाला देखो कुछ। है। सर मैं देख लेता हूँ। ओके, वी मूव ऑन, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ी सी और चीज़ें हम इनपुट कर लें। वी हैव सो मच टू डिस्कस। ओके, हु यूजेस दिस अप्रोच एज अ वे टू इम्प्रूव क्वालिटी। अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ। तो ISO 9000 sees a set of international standards for quality management and quality assurance. The standards were developed to help companies effectively document the elements they need to maintain an effectively quality system. देखो बात आ गई समझ, डॉक्यूमेंट का वर्ड जहाँ भी आएगा तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ISO का जब पूरा स्टैंडर्ड भी पढ़ोगे तो उसमें ये वर्ड्स आते हैं आपके। So the standard were developed to help companies effectively document the elements they need to maintain an effectively quality system, an efficient quality system. They are not specific to any one industry. ठीक है। Here are some companies and organizations that use this standard, ठीक है। जैसे वॉलमार्ट हो गया, US मरीन हो गया, बोइंग कंपनी यूज़ करता है, US स्पेस यूज़ करता है, ठीक है। दीज आर द ISO you can say 9000 companies which have been using these standards for quality assurance and quality management. Any problem with this general information? जी सर, क्लियर सर। Okay, the main features of ISO 9000 family of standard are। अच्छा, इसकी फैमिली का मतलब होता है इसके अंदर काफ़ी, आप देखोगे 9001 चलता है, फिर आगे 2 3 हम देख चुके हैं, और मजीद स्टैंडर्ड्स भी इसमें आगे आएंगे। द ISO 9000 family of standards constitute a quality management system to form an effective management tool। अच्छा, जो सारा जो हमें चल रहा है, जो हमने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है या हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। आइडिया इज़ टू बेसिकली हैव एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल, ठीक है। एक कोई टूल हो कि वी कैन मैनेज द, ऑब्वियसली द पार्ट इज दैट यू विल हैव टू इफेक्टिवली मैनेज द क्वालिटी। एक तो क्वालिटी वाला पार्ट इसमें हो जाए, और जब क्वालिटी ठीक होगी तो वी हैव सीन दिस कि रिजेक्शन नहीं होगी, रिजेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसीज भी बढ़ेंगी, और यू हैव अ effective management system, ठीक है। तो it is a top down management system that defines responsibility and activates the organization। What is the meaning of top down? We've discussed this thing in last classes also. Quality is not a talk of the you can say worker, or you can say down size ladder, ठीक है, of राकी the में। hierarchy। Quality is the talk of the leadership, ठीक है। If the हम्म। leadership is keen about quality and they've agreed to make quality products and have quality embedded in the organization थ्रू आउट, तो वो फिर लीडरशिप का रोल बताता है कि क्वालिटी इज अडॉप्टेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया था दिल को, आपका अगर कोई CEO बैठा है कंपनी में या एटलीस्ट का, वो कहता है कि भाई मुझे प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी का मुझे कोई मसला नहीं है, पार्ट्स नहीं है, सब पार्ट्स यूज़ कर लो, रिजेक्टेड पार्ट्स भी लगा दो, आई वांट द क्वालिटी। आपने कहा स्पेयर्स नहीं है, क्या करें जहाज़ के, उसने कहा मुझे नहीं पता, यूज़ एनी स्पेयर, आप इसकी वो कर लो, यू कैन जस्ट एक्सटेंड द लाइफ्स, और जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रोडक्शन का टारगेट पूरा हो, ठीक है। दिस इज़ वन अप्रोच। दूसरा हम्म। अप्रोच क्या है, हम्म। आप कहते हो नहीं यार, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ माई क्वालिटी, ठीक है, हैव द हम्म। स्टैंडर्ड्स। भले आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो या
स्पेस की वजह से, तो बट आई वुड डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई क्वालिटी। अब ये दोनों अप्रोचेस कहाँ से आ रही है? लीडरशिप अप्रोच है। तो इट इज़ Hmm. ऑलवेज अ टॉप डाउन मैनेजमेंट सिस्टम that defines responsibilities and activates the organization. ठीक है? Any problem with this statement? No, sir. Okay. What is a requirement, but how? Okay. What is a requirement, and but how is the decision taken by the organization? It respects the autonomy of the organization and is a tool that allow organization to individual expression. ठीक है? अच्छा, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट का मतलब है कि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी भी ऑटोनॉमी होती है कि वो डिफाइन करेगा कि हमारे प्रोसेसेस किस तरह होंगे, उसका वर्क फ्लो क्या होगा, ठीक है, फ्लो चार्ट्स क्या होंगे, सिस्टम फ्लो क्या होगा। दिस इज़ द ऑटोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अडॉप्ट किस तरह करती है, कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट करती है, कौन से को वो नहीं करना चाह रही। तो ये स्टैंडर्ड्स कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि काम कैसे करना है। स्टैंडर्ड आपको ये बताएंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपके अपने तरीके से, आपने जो भी एसओपी में लिखा है, they will always test you against your own written documents। अगर आपने तरीका लिखा है कि भाई वी विल फॉलो दिस मेथड, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट मेथड, तो आपको वो गाइड करेगा कि यू आर नॉट बेसिकली नॉट ओनली वायलेटिंग योर ओन रिटन स्टैंडर्ड्स, बट अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी अगर वहाँ से अडॉप्ट किए गए, तो वहाँ वहाँ जाके भी आपके कंप्लाइंस नहीं हो रहे, और आपकी सर्टिफिकेशन अगर इंटरनेशनल बॉडी की है तो वो भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है? तो इसीलिए आपकी स्टैंडर्ड की जो सर्टिफिकेशन है वो 3 साल के बाद होती है। 2 साल तक आपका सर्विलेंस होता है। सर्विलेंस ऑडिट का मतलब होता है वो आके देखते रहते हैं कि ठीक है, आपकी अपनी लिखी हुई चीज़ें आप अपनी कर रहे हैं पूरी, जो आपने लिखा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उसी सर्विलेंस में आपको बताते भी रहते हैं कि देखें ये स्टैंडर्ड आपने अगर डाल दिया अपने पास, ठीक है, गुड स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आप इसको बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह कर ले, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस के ज़रिए दुनिया में जिस तरह काम हो रहा है आप उस तरह करेंगे, और सर्टिफिकेशंस के कुछ क्लॉजेज हैं वो भी आपके यहाँ पे मीट हो जाएंगे, तो यू कैन इजीली गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ इट। तो ये गाइड करता है आपको ऑडिटर जब वो आता है क्वालिटी का ऑडिट करने के लिए। ठीक है? एनी प्रॉब्लम अदील? समझ आ रही बातें? जी सर, आ रही है। सर आपको क्लियर है? Sir, clear, clear. ओके। ओके, व्हाट रिलेशनशिप सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस डज दिस with other approaches? अच्छा, 9000 and 9001 is a unique in sense that it focuses mainly on quality management, and it's is sometimes required by purchasers in order to sell their product। जैसे मैंने बताया, सप्लायर के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे आर सर्टिफाइड। बोइंग अपने पार्ट्स नहीं लेता अगर आप आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी नहीं है। ठीक है? आपके पास जितनी भी अच्छे पार्ट्स हो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो इट विल नेवर बाय द पार्ट्स फ्रॉम यू। ठीक है? इस तरह दुनिया में बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट है कि जो भी इनका सप्लायर है दैट शुड बी आईएसओ सर्टिफाइड, ताकि सबको पता हो कि यार जिससे हम ले रहे हैं वो उनके पास क्वालिटी एश्योरेंस है, और वो प्रोडक्ट जो हमें मिल रही है वो क्वालिटी कंप्लाइंस प्रोडक्ट है। ठीक है? सो Right. quality management, ISO is unique in sense of that focus mainly on quality management, and it's sometimes required by purchasers in order to sell their products, focusing on many principles that have financial benefits to a company. To a company, the 9000 9001 standard separate itself from other standard। अब देखो ISO की जैसे 9000 की सीरीज है, इस तरह 14000 है, वो है आपकी पूरी एनवायरमेंटल के ऊपर। ठीक है? अभी 12000 की सीरीज एंड 15000, दीज आर अलग, दीज आर अदर स्टैंडर्ड्स। ठीक है? like 12,007 and 15,504, these standards focus on structures or modularity, flexibility and independent activities of software processes। अब ये 12,000 जो सीरीज है वो आईटी के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है? तो 9000 प्रोडक्शन एंड ऑल दैट जो हमने बताया। तो स्टैंडर्ड आईएसओ की बातें भी देखेंगे काफ़ी हैं। तो डिपेंड करता है कि किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है और किस स्टैंडर्ड को कहाँ पे। लाइक 9000 इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इसी तरह आपका हम देखेंगे एविएशन स्टैंडर्ड। अभी अब देखोगे 9100 आता है, एविएशन स्टैंडर्ड कहते हैं, AS9100, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं सारी, जितनी भी यहाँ पे कामरा में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है? इस तरह 9100 है, फिर 9101 है वो सप्लायर्स, फिर 9102। तो दीज आर द फर्दर स्टैंडर्ड्स जो आते रहते हैं इसमें। Right.
what is your opinion of this approach? Okay, ISO 9001 approach is certainly an industry fail-safe management system for most companies to use. The primary reason for this system is because it's becoming almost unnecessary to sell software products. ये हमने बता दिया, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होगा तो उसको स्टैंडर्ड डालना पड़ेगा, जो जहाज बेच रहा है एविएशन, तो दे हैव टू गेट द कंप्लायंस ऑफ these स्टैंडर्ड्स, ठीक है. ISO 9000 have been proven a quality management tool over the years, and that is status previously used by many different companies. Okay, compared to the other standard, ISO 9000 is one of the robust quality management tool companies would greatly benefit from financially over the long term. Okay, that's like the first session of our discussion. इसमें anything that is a problem for you? और तो इसको हम ज़रा यहाँ पे रोकेंगे, 2 मिनट के बाद ये वीडियो भी एंड हो जाएगी, फिर हम इसको आई विल गिव यू कुछ अनदर. क्वेश्चंस? यस जी राज साहब. जी सर, तो क्या ये अभी तक मतलब यही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड, या कोई और भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स उभर रहे हैं मार्केट में, या आ रहे हैं, या जरूरत है या नहीं है? दीज आर आर दीज द इनफ? दीज आर रिवाइज बेसिकली एवरी ईयर ना. इसकी हम आगे डिटेल एक और स्लाइड्स में देखेंगे कि इसको किस तरह हम्म। चला रही है दुनिया में, बॉडीज किस तरह बनती हैं, और हम उसमें कहाँ पर है. जो आपका सवाल था ना, वो मैं आपको स्लाइड्स अभी वो दूसरी तो स्टार्ट सेपरेट कर. सवाल है सर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यही एक स्टैंडर्ड है जो कि हर चीज मीट कर पा रहा है, या अदर पीपल जिन्होंने कोई अपना कोई अल्टरनेटिव भी निकाला हुआ है फॉर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका इसके? जवाब इन शॉर्ट ये बता दूं कि दिस इज़ द ओनली स्टैंडर्ड बॉडी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी जो है इसकी एक ही है जो इसको गवर्न करती है. ये हुआ था कि चाइनीज़ अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए थे, अमेरिकन ने अपने बना लिए हैं, रशियन ने अपने स्टैंडर्ड्स अच्छा। बनाए, ठीक है. फिर एक बॉडी ठीक इन्होंने है। बना दी है कि वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो हर यू कैन से कि कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर मोस्टली यू कैन से अलाइन विद ईच अदर. प्रोडक्शन जो होती है, जाहिर सी बात है, रिजेक्शन, रिप्लेसमेंट, सप्लायर वैल्यूएशन, ये मोटी मोटी बातें सब में एक ही कॉमन है, चाहे वो चाइनीज़ और अमेरिकन हो या यूरोपियन हो. तो ये उन चीज़ों की बात हो रही है कि भाई अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है तो आपकी सप्लायर वैल्यूएशन करके रखें. सप्लाई वैल्यूएशन होगी, रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ, आपने रिस्क वैल्यूएशन किया हो. इस तरह की देर लाइक 14 to 15 क्लॉजेस जो आपकी हर जगह पे सेम है. लाइक क्लॉज 8 जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और हाँ। 8.123 मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D. तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि हर जगह काम एक तरह का ही होता है. प्रोसेस आर सेम इन सही। एवरी कंट्री, ठीक है. सही। ये मेरे ख्याल है इट्स गोइंग टू बी एंडिंग इन अ मिनट, तो मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ. अगर ठीक है इसमें सर। 10 मिनट का गैप लेते हैं तो विल वेट फॉर दिस एंड देन विल जॉइन विद अनदर सेशन, ठीक है. ठीक हो गया सर। अदील, आई ठीक विल है सेंड. सर. जी सर. आई एम सेंडिंग इन अनदर लिंक, ठीक है, ये लिंक फायर हो रहा है. नो इशू सर. ओके.